संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो दर्द जो सबको जोड़ देता है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा हैं,
ना अच्छा स्वास्थ्य, ना रोजगार और ना ही दिल को सुकून। हर कोई किसी न किसी मुसीबत में फंसा है। जैसे कि संजय यादव जी, जो देवगढ़ झारखंड के रहने वाले हैं। संजय जी का जीवन भी एक दर्द भरी कहानी है। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनकी माँ एक गंभीर बीमारी से इस दुनिया से चली गई। एक छोटी सी उम्र में माँ का साया उठना ऐसा दर्द है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। जैसे तैसे समय बीता, लेकिन मुसीबतें तो जैसे उनके घर का पता जानती थीं। उनके पिताजी किडनी की सूजन और एड्स जैसी भयानक बीमारियों से जूझ रहे थे और एक सर्दी की रात उनकी बहन पैरालिसिस का शिकार हो गई। उनके घर में जैसे खुशियों का नाम और निशान मिट चुका था। एक दिन जब उनके पिताजी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले। उन्होंने एक उम्मीद का दिया जलाया। उन्होंने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी और कहा, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर देखिए, आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। इस कठिन घड़ी में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, संजय जी के पिताजी ने नाम लेने का फैसला किया। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे सही कदम साबित हुआ। आज उनका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर जुड़ा हुआ है। और देखिए, अब उनके घर में ना वो दुख है, ना वो मुसीबतें। पिताजी की वह एड्स जैसी बीमारी भी सही हो गई, जो कभी सही नहीं होने वाली थी। तो सोचिए, जब एक छोटी सी उम्मीद की किरण किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, तो हम सब भी अपनी जिंदगी में उस रोशनी को पा सकते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मुश्किलों के बाद ही सवेरा आता है। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ संजय यादव जी की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो इस दुनिया में दर्द सहते हुए भी उम्मीद की तलाश में है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड देवघर जिले से। संजय यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान आपने कब लिया? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। सर आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का सबसे बड़ा कारण बना कि मेरी घर में दुखों का पहाड़ टूटा था। जैसे कि मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिस टाइम मैं 5 साल का था। और वही बीमारी मेरे पापा का भी शुरू हो गया, जो कि इतनी हद तक जा चुकी थी कि मेरे पापा को डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। पापा का सबसे बड़ा बीमारी था कि दोनों किडनी में सूजन हो गया था और लीवर ख़राब हो गया था। और सबसे बड़ा बीमारी था कि मेरे पापा एड्स HIV पॉजिटिव थे, जिसकी कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इसकी अब आगे की लाइफ नहीं है, ये 10 दिन के मेहमान हैं, 10 दिन में ये डेथ हो जाएगी इनकी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर विजय प्रसाद ने पटना से, तो उधर से मेरे पापा घर आ रहे थे। तो जब आ रहे थे ट्रेन में, तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का एक भक्त मिला, जो कि पापा को देखकर बोले कि आप ऐसे क्यों हैं, इस तरह से परेशान क्यों हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने बताया कि हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमें इस तरह से बीमारी से परेशान है। तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले लीजिए, जो कि दुनिया में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो पापा सोचे कि ये तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल रहा है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर पापा को वो बढ़िया से समझाने के बाद फिर पापा को लगा कि चलो, जब सारी देवी देवताओं को भक्ति करके हार गया मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई उपाय नहीं बचा है। तो उसी टाइम आते वक्त भगत जी मिले, सब चीज़ बताए उनको। तो उनके घर में आके पापा ने सलाइन, जो कि मेरे पापा 2.5 साल से सलाइन पे ही जिंदा थे, कुछ खाया पिया नहीं करते थे, डेली 5-10 बोतल चढ़ती थी। और उस दिन जब आए, भगत जी के घर आए और वहाँ से दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को। और उसी टाइम वो भगत जी बोला कि आप आज यहाँ से आप टिकट करवा लीजिए और आपका ये सारा बीमारी धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। उसके बाद उस दिन टिकट कटाए और 1 महीना के बाद फिर से पापा संत रामपाल जी महाराज के बरवाल आश्रम गए और वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने मात्र से ही 1 महीने में ही पापा का, जब फिर से वहाँ पे गए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि आप नहीं बच सकते हैं, उनके पास गया। उनको वो रिपोर्ट दिखाई जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो उस रिपोर्ट में दिखता है, उनको हैरान हो गया कि इसमें ना ही कोई ज्वाइंट है, ना ही कोई कुछ ही आपको इसमें लगा हुआ है, कोई ऑपरेशन वगैरह। और आप ऐसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर हैरान हो गए। तब पापा ने उनको बताया कि
हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी भक्ति मात्र से ही हमारा ठीक हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी पापा मेरे। और ये मेरे पापा के रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और एड्स का भी रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इसी लाभ को देखते हुए हम सभी पूरे घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपके परिवार में लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी को डॉक्टर्स ने समय दे दिया था कि अब इनको घर लेकर जाओ, अब ये नहीं बच सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? हमको सबसे बड़ी लाभ हुआ है कि दास का इसी 11 फरवरी 2023 को एक्सीडेंट हो गया था, जो कि 60 की स्पीड में हम गाड़ी चला के आ रहे थे और एक बैग से एक पिकअप ने ट्रक को ओवरटेक किया और वो बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर आ गया, इधर मेरे साइड, और मेरे पास कोई जगह नहीं था कि मैं इधर या इधर जा सकता हूँ। अपने रूट में मैं क्लियर जा रहा था, तब तक वो आगे से आ गया और गाड़ी इतनी स्पीड से टकराई कि अब लगा कि मैं नहीं बच सकता हूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को बोला जय बंदी छोड़ की, इतना ही बोल पाया, तब तक वो गाड़ी चल गई, वहाँ से टकरा गई और परमात्मा की इतनी दया हुई कि गाड़ी जाके अंदर घुस गई, उस पिकअप में अंदर घुस गई, गाड़ी चक्का फंस गया और गाड़ी का वेजर जो था आगे वाला वो टूट गया, अंदर चला गया और मैं ज्यों का त्यों खड़ा रह गया, मुझे कोई कहीं का कोई खरोच नहीं आया। परमात्मा की इतनी बड़ी दया है। परमात्मा बताते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया की कि मेरी हो सकती थी उस दिन मृत्यु हो और परमात्मा ने कांटे की दर्द में मुझे वो मृत्यु टाल दिया। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी दादी का इसी मार्च के महीने में ऐसा करंट लगा था, जो कि करंट लगाने के बाद उसको जब हॉस्पिटल ले गए थे तो डॉक्टर ने सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इसको इतनी बड़ी करंट लगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी हाथ में दर्द है, ये कैसे हो सकता है। इतना आज तक हमने नहीं देखा था कि जो कि हाथ में करंट लगने के बाद गड्ढा हो गया था और वो आदमी अभी तक जिंदा है, ऐसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा था, डॉक्टर ने बताया। और मेरी दादी को कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी दर्द हुई और उनको करंट लगने से मतलब हो सकता था कि उनकी आज उस दिन मृत्यु हो सकती थी और परमात्मा ने बचा लिया उनको। और एक और लाभ हुई कि मेरी दीदी को ठंड के दिन में पैरालिसिस हो गया था, जो कि मुंह टेढ़ी हो गई थी ठंडी के कारण, तो वो भक्ति नहीं लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आप कहीं मत जाओ, ये जब डॉक्टर ने बोल रहा कि ऐसे ऑपरेशन करना होगा, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसे में शंके में डाल रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कुछ नहीं करना है, हम लोग जब इतना बड़ी बीमारी परमात्मा ठीक कर सकते हैं तो ये छोटी सी बीमारी है, इसको क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने उन सबको बोला कि चलो अभी भक्ति ले लो, और वो भक्ति लिए, यहीं बगल के नामदान सेंटर में भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से, और बस नाम मात्र की दवाई से ही वो ठीक हो गए। अभी आप उसको देखिएगा तो कोई नॉर्मल है, कहीं कोई की तरह नहीं लगेगा कि इनको पैरालिसिस हुआ था। और पापा मेरे इतना नशा करते थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो सुबह उठते ही नशा करते थे, रात में घर आते नशा करते, दिन भर नशे से लथपथ रहते थे, जब देखो तब नशा करके अपना इतना हालत ख़राब कर दी थी। मेरे घर की पूरा आर्थिक परेशानी हो गई थी, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। घर में जितने भी सब कुछ थे सारा चीज़ बेच बाच के इधर उधर ख़त्म कर दिया और नशे में डूबा रहते थे घर में। जब इतनी भी परेशानी हो गई फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नशे की इतनी लत लग चुकी थी। जब उनको बीमारी स्टार्ट हुई और वो ऐसा बीमारी स्टार्ट हो गया कि उनका कोई इलाज नहीं हुआ, और इनका मेन कारण है कि नशा वो करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की जब वो भक्ति लिए, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से ही उनकी नशा छूट गई, और अभी पापा मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तरह की बीमारी नहीं है, और हमारे पूरे परिवार अभी स्वस्थ हैं। हम लोग पूरी शांति जीवन जी रहे हैं। पूरे अगल बगल के फैमिली लोग, मेरे पड़ोसी लोग सोचते रहते हैं कि ये लोग इससे भिखारी की तुल हो गया था और अभी कुछ नहीं करता है, बस नॉर्मल से ही कामों में इन लोग को इतना कैसे धन हो जाता है, इन लोग को इतनी कैसे सब सारा चीज़ सुख रहता है, वो लोग सोचते रहते हैं बस ये तो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमात्मा की शरण में आने से कितनी लाभ हो सकती है, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की भगत ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई
तरह की परेशानियां नहीं होती, वो सिंपल है। बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जो कि आप उस पर कॉल कीजिएगा। सिंपल से आपको कॉल करने के बाद आपको उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की आप विशेष प्रिय आत्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ। प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो।
कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं, और कभी भी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, तो विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं, चेहरे की दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के, और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, वह रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे वराणी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंसा, यहां आगे वराणी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं, उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं। और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था। इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है। और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है। और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब। हम सत साहेब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण। नारायण का क्या अर्थ होता है? कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा।
वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहिब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखे हैं, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुख रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी, तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवे नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता, उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में। कभी असुर और देवताओं का और सुर-असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं।
श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था। रात्रि के समय आपस में कहासुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ दे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए, कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी
ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में। एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आ भी गया युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी तीन समुद्र था तीन तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष तक यहाँ रहे थे मथुरा में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन पर की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहां पर। आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी,
फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है, ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए।
एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नित कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर, यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा कांटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बतावें आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है,
हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਵਿਆ ਦਾਸੀ, ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਸਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਈ ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ? ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਨ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਏ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਏ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਕ ਝਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਕਦਮ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਸਟ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਨਹੇਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਰਮੈਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮੈਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਮੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਭ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਵੈਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।